Today we will start chapter 8, comparing quantities. Comparing quantities. So how we can compare any quantities? By ratio or by percentage. हाँ? Okay, ratio से हम compare कर सकते हैं and by percentage also. So first we'll discuss ratio and percentage. If I give you an example that total number of fruits is 20 and number of oranges is 5, okay, and number of apples is 10. So we have to find ratio of orange and apple. Okay, we have to find ratio of orange and apple. So कैसे find करेंगे बताओ, tell me how we can find ratio of oranges and apples. See, total number of fruits is 20. Okay, so 5 is orange, mean number of oranges is 5. So I can write 5 upon 20. वो क्या होगा कि ऑरेंजेस का उसमें परसेंटेज कितना है, बट रेशियो आपसे पूछा है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ऑरेंजेस अपॉन एप्पल्स. ऑरेंजेस अपॉन एप्पल्स. ओके, तो कितना हो गया 1/2. दिस इज 1/2. रेशियो इज 1/2. क्लियर है? मीन्स जितने ऑरेंजेस हैं एप्पल्स कितने हैं उसके डबल है. इज दिस क्लियर? Okay, and now we have to find percentage of oranges. See how we can find percentage. First write number of oranges upon total fruits into 100. This is the method to find the percentage. 100 will represent percent, this percent will represent 1 upon 100. Clear है दीक्षा? Tell me. Okay, ratio कैसे find करना है? See, ratio we will find if I have written that oranges and apples. तो जो ऊपर हम क्या लिखेंगे, number of oranges and upon number of apples. Then ratio of orange and apple is 1/2. Clear now? Okay. And how we will find percentage of oranges? Now I am talking about only oranges and percentage. ठीक है, हम क्या डिफरेंस अभी डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड परसेंटेज. So if you have to find percentage of oranges, so first I will write, जैसे marks आप, जैसे आपको मैथ्स में मिले हैं 80 out of 100, so आप ऐसे लिखते हो 80 out of 100. Okay, and then if you have to find the percentage, then you multiply this by 100. This is the method. So how much percentage is 80% marks that you got in maths. इसका मीनिंग ये होता है. Clear है? Similarly, we will find for oranges. First, you will write number of oranges, then total number of fruits into 100. Now we will cancel it out. 0 0 cancel. 2 5s are 10. So 25%. Means 20 fruits के अंदर जो orange है उसका percentage कितना है? 25%. Now can you find the percentage of apples? Apples की percentage निकाल के बता सकते हो मुझे? What is the percentage of apples? I'm still a bit confused. Between percentage और ratio? The Tell me. ratio. Okay. देखो रेशियो में अगर आपसे पूछा है, मैं एक्सप्लेनिंग वंस अगेन. पहले मैं आपको रेशियो ही एक्सप्लेन करती हूँ. वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स. तो पहले जो वर्ड होगा ऑरेंज वो हम कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में, एंड देन अपॉन डिनोमिनेटर. सो ऑरेंजेस कितने हैं 5, सो 5, एंड एप्पल्स कितने हैं 10. सो यू विल राइट 5 अपॉन 10, 1/2. और सिंबल आपको पता है ये रेशियो का सिंबल ये होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो, 1/2. ओके, इसका मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज को. मीन्स ऑरेंज जितने भी हैं, अभी हमें पता है क्वेश्चन में कितने हैं 5, उसके डबल एप्पल्स हैं 10. 10 ही तो एप्पल्स हैं. क्लियर नाउ? एंड इफ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड
रेशियो ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ओके, अभी चेंज हो गया, पहले क्या लिखा है एप्पल्स, तो आप ऊपर क्या लिखोगे नंबर ऑफ एप्पल्स अपॉन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, देन दिस विल बी 5/1 रेशियो, सॉरी यहाँ पे 5 है, 2:1। अभी कितना रेशियो है 2:1, मीन्स जितने भी एप्पल्स होंगे ओके उसका रेशियो 2 है तो उसका 1 है, मीन्स उसका हाफ हो गया है ना। अगर आपके एप्पल्स 10 है तो ऑरेंजेस कितने हैं, हाफ ऑफ एप्पल्स। क्लियर नाउ, दिस विल रिप्रेजेंट द रेशियो सिंबल। ओके, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, नोट करो। नाउ आई विल डिस्कस परसेंटेज। डन। डन, टेल मी, क्लियर है? Clear now? Am I audible to you? Okay. So now we will discuss percentage. We can compare any quantities by ratio or by percentage. Means आप किसी भी quantities को ratio से compare कर सकते हो या percentage से. So now we will discuss percentage of oranges. What is the percentage of oranges and what is the percentage of apples? So अभी हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, ऑरेंज की। ओके, जिसे आपको अगर मैथ्स के मार्क्स के परसेंट फाइंड करने हैं तो मैथ्स के मार्क्स लिखते हैं, सिमिलरली ऑरेंज के फाइंड करना है तो ऑरेंज के आप लिखो कि ऑरेंज कितने हैं 5, आउट ऑफ कितने हैं 20, देन मल्टीप्लाई इट बाय 100। ओके, दिस इज द मेथड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी क्वांटिटी। So now 2 cancelled out and 2 5s are 10. So what is the percentage? 25%. Clear? Similarly, we can find percentage of apples, that is 10/20 into 100 because apples are 10. 250. What is the percentage of apples in these fruits? 50%. Clear है? नोट करो। नोट करो। क्लियर? Done? Now we'll discuss one example, then we'll start our exercise 8.1. Example is that a picnic is being planned in a school for class 7th. Okay, girls are 60% of the total number of students and 18 in number. मीन्स आपको ये गिवन है कि गर्ल्स कितने हैं 16% ऑफ टोटल नंबर। अभी आपको टोटल नंबर नहीं पता, आपको नहीं पता है स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं,
बट गर्ल्स का पता है आपको कि गर्ल्स 60% है एंड दैट 60% इज 18 मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स आपको गिवन है 18. The picnic site is 55 kilometers from the school and the transport company is charging at the rate of rupees 12 per kilometer. Means कितना डिस्टेंस पे है वो पिकनिक 55 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लग रहा है रुपीज 12. टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स विल बी रुपीज 4280. जो टोटल कॉस्ट है रिफ्रेशमेंट्स की वो आपको गिवन है रुपीज 4280. दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी हैं सबके रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट है ये. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास. ओके, हमें क्या फाइंड करना है कि पहले इस सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से हम फाइंड कर सकते हैं क्या कि रेशियो ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज. So in first part, how we can find ratio of number of girls to the ratio of number of boys? First we have to find the number of boys because girls तो हमें पता है ना. रेशियो भी मैंने आपको बताया. अगर आपको रेशियो फाइंड करना है गर्ल्स टू बॉयज तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज विल बी द रेशियो फॉर देम. बट नंबर ऑफ बॉयज हमें नहीं पता. सो फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ बॉयज. फॉर दैट फर्स्ट लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x. मैंने एक्स लेट किए. ओके, हमें नहीं पता कितने हैं तो हमने एक्स लेट कर लिए. एंड इट इज गिवन दैट 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 18. sorry, is equal to number of girls and that is equal to 18. I will write in the next line. So you can write like this. Is number of girls. Now I will convert this statement into the mathematical statement. We have given that 60% of total students is number of girls. So 60% you can write 60 upon 100. Of means multiply. Total students means x. Is means equal to and number of girls we have given that is 80. Is this line clear? ओके, फर्स्ट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, उसी को हमने कन्वर्ट किया इनटू द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. 60% मीन्स 60 upon 100 of multiply total students we have let the total number of students is x is will be replaced by equal to and number of girls we have given 80. Now we can find the value of x from here. So x will be 0 0 cancelled out. 18 into 10 upon 6. Now solve it and tell me the value of x. Solve it. See, 6 3s are 18. So this is 30. It means 30. total. हाँ. So total number of students हमने find किए 30 और girls कितनी है 18. So therefore number of boys will be total students minus number of girls. ऐसे ही find करोगे है ना. टोटल स्टूडेंट्स में हम गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 12. Here now we have to find ratio of number of girls. So I am writing here ratio of number of girls to number of boys is equal to number of girls 18 upon 12 upon number of boys. Clear now? 12 you can cancel it about 6 6 2s and 6 3s. So ratio is 3:2. This is the answer for the first part. So first part में हमें क्या फाइंड करना था नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो टू द नंबर ऑफ बॉयज. उसके लिए आपको दोनों के नंबर पता होना चाहिए. हमें गर्ल्स का पता था, हमने उससे पहले हमने फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर हमने नंबर ऑफ बॉयज फाइंड किए. क्लियर है? नोट करो.
Ma'am done. So in second part, we have to find cost per head if two teachers are also going with the class. Okay, means 30 अभी हमने फाइंड किए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, टीचर्स भी हैं, तो टोटल कितने हो गए पर्सन 32। तो 32 में आपको ये बताना है कि पर पर्सन को कितना कॉस्ट पड़ेगा पिकनिक का, इंक्लूडिंग रिफ्रेशमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यही तो है आपकी टोटल प्राइस है ना। तो हमें एक पर्सन का कितना पड़ेगा उसको ये फाइंड करना है। So how will find the second? हमें given है that picnic is 55 kilometer away from the school and for 1 kilometer we have to pay rupees 12 and total cost of refreshments is rupees 4280। तो ये 32 persons की ही refreshment की cost given है। इस सब बच्चों को मिला के एंड टीचर्स को मिला के जो भी रिफ्रेशमेंट हमने दिए तो कितनी कॉस्ट है उसकी रुपीज 4280। Clear? So how will find? First I will write transportation charge. Transportation charge is given. Transportation charge कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस जाने का भी और आने का भी। ओके, देखो 55 किलोमीटर आपको जाना है, वापस भी आना है, और एक इंटू रेट। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस बोथ वेज में क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज हमें जाना भी और वापस भी आना है, तो जाने के जैसे जितने रुपीज लगेंगे उतने आपको वापस आने के देने पड़ेंगे, इनटू रेट ऑफ 1 किलोमीटर। ओके, सो डिस्टेंस कितना है 55, बट बोथ वेज का मतलब क्या है? 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, टोटल डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है? 2940 for all the students, but not including teachers. I'll like solve for including teachers. No, wait a second. I solved it for one guy. वी आर सॉल्विंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अभी सिर्फ हम Yeah. ट्रांसपोर्टेशन चार्ज फाइंड कर रहे हैं। ओके, It will be Total- 660 per guy. See, 2 into 55 is 660 is correct. Okay, बट अभी हम ये क्या फाइंड कर रहे हैं? सब की 32 पर्सन की कितनी होगी? 1 into 12 इट मीन्स रुपीज 1320, राइट। बट ये तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना, आपको रिफ्रेशमेंट के भी इंक्लूड करके फिर फाइंड करना है। ओके, सो टोटल, बट टोटल जो कॉस्ट है मीन्स टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? टोटल एक्सपेंसेस Total expense for one child will be 4940. ओके, तो उसमें हम रिफ्रेश, अभी मैं फाइंड कर रही हूँ, देखो पहले मैं क्या कर रही हूँ, रिफ्रेशमेंट Including में the ऐड कर रहे हैं refreshment cost and the travel cost. प्लस ट्रांसपोर्ट कोस्ट विल बी रिफ्रेशमेंट कोस्ट। हमें 32 भी गिवन है, सो अभी हम इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं 32 की ही फाइंड कर रहे हैं। दिस विल बी 5600। ओके, नाउ वी विल फाइंड कोस्ट पर हेड। सो कोस्ट पर हेड विल बी 5600 अपॉन 32। व्हाट इज योर आंसर? डिवाइडेड। क्लियर है? ये हमने ये किसकी कॉस्ट फाइंड की है? 32 की, बिकॉज टीचर्स 2 हैं। ओके, आप ऊपर मेंशन करना total number of persons will be equal to 30 plus 2, that is 32। ओके, 32 से अभी इसको डिवाइड करो, देन दैट इज द कॉस्ट पर हेड। हमने पहले क्या फाइंड किया कि 32 पर्सन्स की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है, उसके बाद हमने फाइंड किया कि उनकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, बिकॉज टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट हमें गिवन है। This will be cancelled and then you will get rupees 175. This is your answer. Is this clear? Okay, if you cancel it out, then you will get 175. Note it. Done, Dikshant?
No, ma'am. Okay, noted. Done? Clear? Next part. See, in third part, if their first stop is at place 22 kilometer from the school, what percent of the total distance of 55 kilometer is this? What percent of the distance is left to be covered? Okay, so now we are discussing third part. See, in third part, आपको ऐसे given है, like this is school, and this is picnic spot. So total distance is 55 किलोमीटर. बट एक स्टॉप पे आप 55 किलोमीटर पूरा तो ट्रैवल नहीं करोगे, बीच में कहीं रेस्ट के लिए एक जगह आपको स्टॉप तो करोगे. दैट इज 22 किलोमीटर. 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम स्टॉप करते हैं हियर. ओके, तो वो पूछ रहे हैं कि ये आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन परसेंटेज, परसेंट की फॉर्म में बताओ. टोटल डिस्टेंस हम 100% लेंगे, तो 100% में से आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन परसेंट फॉर्म. सो कैसे फाइंड करोगे? राइट, डिस्टेंस to reach first stop is 22 kilometer and total distance is 55 kilometer. So percentage covered, percentage of total distance of 55 kilometer of 55 किलोमीटर ऑफ 22 किलोमीटर है ना. 22 किलोमीटर की हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ 22 किलोमीटर. सिंपल. तो कैसे आप फाइंड करोगे? 22 अपॉन टोटल. देखो फॉर्मूला वही है, जिसका आप फाइंड कर रहे हो उसको आप पहले ऊपर लिखोगे अपॉन टोटल डिस्टेंस इनटू 100. आप मार्क्स के लिए याद रखो, बिकॉज उसके लिए सबसे इजी होता है. वी विल राइट नंबर ऑफ मार्क्स देन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सो नंबर हम किसकी परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं फॉर द 22 किलोमीटर. सो 22 अपॉन 55 इनटू 100. वी विल कैंसिल इट बाय 2, सॉरी 11. 11 2s and 11 5s, then 5 2s are 10, 0. This is 40%. Here, now we have to find that what percentage of the distance is left to be covered. अभी ये कितना डिस्टेंस बच गया आपका कवर करना, तो कितना होगा? परसेंटेज of distance left to be covered will be 100% minus 40%, दैट इज 60%. अगर आपने 40% कवर कर लिया है तो कितना बचेगा? ऑब्वियसली 60% ही तो डिस्टेंस बचा है. क्लियर? नोटेड?
Now we'll start our exercise. 8.1. So in first question, we have to find the ratio of the following. Speed of a cycle 15 km per hour to the speed of scooter, which is 30 km per hour. Okay, these are very easy questions. So first we will write A part, speed of cycle. Speed of cycle is 15 km per hour and speed of scooter is 30 km per hour, right? And you have to find ratio of speed of cycle to the scooter, means cycle to scooter. पहले आप क्या लिखोगे, साइकिल की स्पीड विच इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्कूटर की स्पीड 30. So 15 2s are 30. So what is ratio? 1 ratio. This is your answer. Note it. Similarly, we can solve B and C part. So now we'll discuss B part. See B part. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है ना, आपको किसका रेशियो फाइंड करना है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. बट जब भी आप रेशियो, अगर आप रेशियो फाइंड कर रहे हो ओके और परसेंटेज, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो उनकी यूनिट होगी, यूनिट शुड बी सेम. फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट पार्ट ये भी किलोमीटर पर आवर थी, ये भी किलोमीटर पर आवर थी, तभी आप कंपेयर कर सकते हो किन्हीं दो क्वांटिटीज को अगर उनकी यूनिट सेम है. बट इन सेकेंड पार्ट यूनिट इज नॉट सेम, सेम नहीं है ना यूनिट, तो आपको पहले उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करो और इन मीटर्स. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 5 मीटर को हम एज इट इज लिखते हैं, 10 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू मीटर्स. दैट विल बी 10 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 10,000 मीटर. नाउ रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर विल बी, पहले आपको लिखना है 5 मीटर और 10 किलोमीटर में आपको ये लिखना है अभी मीटर की फॉर्म में 10,000. Now cancel it. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1 2 3 0. So ratio is 1 ratio 2000. This is your answer for the B part. C part. So in C part we have given 50 paise to rupees 5. Again what we will do? First we will convert both into rupees or into paisa. So try this yourself and we will continue from second question in the next class.